नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और आप जानते हैं जब जब उत्सव के दिन आते हैं तो हम बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं और प्रफुल्लित शब्द का मतलब प्रसन्नता से हुआ और लेट मी पुट इट इन इंग्लिश दैट वी फील इलेटेड, वी फील a sense of joy, and we try to recreate celebration the way we have experienced while we were. We definitely want our kids to have not just understanding of Indian culture. We want them to be as thickly connected with Indian cultural roots as we feel we ourselves are. But that is not so easy. It's not easy even if you are in India, but once you are an NRI, then how there is dilemma that we face, how and why, etc. So we will talk about uh, this aspect of holding cultural roots, and I have the pleasure of welcoming Rajendra Harshji, Samit Sadakji, Hari Bhattji, author, The Critical Hindu. So I will begin with you, Rajendraji. Why uh, should a parent feel a kind of pressure? When I say why, meaning I have experienced myself and I've seen many parents feel there is a sense of pressure. उनके ऊपर एक दबाव सा होता है कि भाई मैं भारतीय संस्कृति को जितना जानती हूँ उसका कुछ अंश अपने बच्चों तक मैं पहुंचा पाऊं और उनको अपना एक कर्तव्य की तरह भी लगता है और ये सहज बात है. हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर स्पेस in the mind of the young parents who are here as NRIs? Ashok ji, what you raised the question is very relevant, and it's in this time it is very much important for that, because when we talk about our culture, culture is like a body of our religion. It is in a manifestation of religion what we have. So if we are Hindu, then our manifestation comes in the form of culture. And Hindu being all this whole religion is so vast, so our cultural manifestation is also vast. There is not a single month when we don't have some festival. Every change of season, you have a festival. Every change of season, you have a Navaratri. You have a Deepavali, you have Holi, the main Deepavali, Holi main seasons. Then for brothers, sisters, nowadays they talk about day of brother, day of sister. No, we have the full-fledged festival for that. Okay, all brothers, sisters, they come together. So Raksha Bandhan is another thing. Those who want to have a knowledge, there is a Sri Panchami is there. Those who want to be, those who are warriors, for them, Dashera is one of the festivals. Those who want to have a business, for them, in Gujarati, they say Besta Baras. The next day to the Deepavali is a thing. When they call the on Lakshmi, they do the Avan of Lakshmi on Deepavali. Those on the spiritual wealth, for them, Sharada Purnima is there. So, for as a human being, and it is a human being of that particular society who have been very rich, not only in money but in in cultural values, in religious values, in social values, and in all the type of art. You talk about a painting, you talk about architecture. So there are different needs of everybody, and all those needs, as more and more a society prospers, then more needs are created of different person, different way. All those needs are being fulfilled by our culture, and our culture is so rich, there's nothing is left for anybody else. Now we don't say any to our culture not to celebrate new year of as per English. This we say no, it's no problem. In our religion, it has got nothing to be, nothing is banned. Right. At So the same time, let me come back to you and continue with the thread where you have left and given us a very nice segue. As a Hindu, you do not object, or rather, you encourage kids to participate in whether it is a Halloween or, of course, Christmas and multiple. So there is an inbuilt openness to embrace other cultural festivals. But coming back to the need to hold on to culture, Hariji, you also wrote this book, The Critical Hindu. Let's hear from you when we say cultural roots.
तो एज अ पेरेंट कौन सी बात है जो टॉप 5 थिंग्स यू थिंक, जो एक पेरेंट के माइंड में आती है कि भाई ये बात मैं अपने बच्चे तक पहुंचा सकूं, ताकि वो सेंसिटिविटी उसकी बढ़े, एप्रिसिएशन रिलेशंस के बारे में उसका बढ़े, उसकी ग्रोथ में हेल्पफुल हो। अगर आप कोशिश करें मुझे पता है बहुत सारी हैं, लेकिन जस्ट पिक सम 5 सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स, हरी जी। नमस्कार सर। मेरा ये मानना है कि जो एक संस्कृत का श्लोक है, धर्मो रक्षति धर्मः, मतलब आपको अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर धर्म को जिस तरीके से आप एडॉप्ट करना चाहते हैं, कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन आप एडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक वाइडर पर्सपेक्टिव में इसको देखना है या वाइडर पर्सपेक्टिव में अगर इसको यूज करना है, तो आपको धर्म के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी इज धर्म। आपका जो धर्म है, वो जो धर्म जो आपको सिखाता है, या कल्चर जो आपको सिखाता है, वो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी सिस्टम चल नहीं सकता है। So the basic reason why religion and why togetherness and why celebrations is because there are certain rules and regulations which are made in the society. उस सोसाइटी में उसको यूनाइटेड रखने के लिए, उसको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने के लिए इस तरीके के कल्चर और रिचुअल्स की बहुत जरूरत पड़ती है। आपको याद होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने एक चीज देखी कि हिंदुओं को एक साथ इकट्ठा करने के लिए एक गॉड, एक सिंगल भगवान कौन है जिसको सब धर्म वाले, जैसे वेदर वो हिंदू हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, एवरीबडी फॉलो वन गॉड, दैट इज लॉर्ड गणेशा। लॉर्ड गणेशा को हर जगह, हर धर्म को मानने वाला, हर पंथ को मानने वाला उसको स्वीकार करता है। तो उन्होंने आजादी के साथ लोगों को एक साथ संलग्न करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए ये गणेश चतुर्दशी को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, जिसके आधार पे हर लोग एक जगह इकट्ठे हों, एक जगह एक गॉड की पूजा करें, एक तरीके के रिचुअल्स को परफॉर्म करें, और इस तरह से वो लोग यूनाइटेड रहें। तो धर्म के जो धर्म एक अलग चीज है, और रिचुअल्स जो है वो एक दूसरे को बॉन्डिंग करने की एक वजह बनती है। आप दिवाली सेलिब्रेशन करते हैं, दिवाली सेलिब्रेशन क्या है? इट्स एन ईयर एंडिंग प्रोसेस। आपका जो हिंदू रिलीजन के हिसाब से जो साल का अंत होता है वो दिवाली होती है, और नया साल जो राजेंद्र जी ने कहा कि गुजराती लोग नया साल जो है वो दिवाली के दूसरे दिन मनाते हैं। उस दिन क्या होता है कि नया साल बनियों का नया साल है, जो बिजनेसमैन है उस कम्युनिटी के लिए वो नया साल है। लेकिन हमारे लिए जो नया साल है वो चैत्र की एकम है, जिसको हम गुड़ी पड़वा कहते हैं या जो भी कहते हैं। वो एक्चुअली देखा जाए तो वो नया साल अपना होता है, लेकिन ये नया साल एक अकाउंटिंग ईयर है। तो इस तरीके से जो सेलिब्रेशंस हैं, वो सेलिब्रेशन के पीछे के कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई रीजन है। ये सारी चीजें हमें समझानी पड़ती हैं आज की नई जनरेशन को। पहले हम क्या थे, एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, वी वर ऑल स्टेइंग टुगेदर, सो व्हाटएवर माय फादर यूज्ड टू परफॉर्म दैट वी स्टार्टेड कॉपीइंग इट। लेकिन अब हम लोग अमेरिका में आ गए। अमेरिका में आने के बाद हमारे नाम तो हरि और राजेंद्र जी और अशोक जी रहा, लेकिन कई लोगों को ये मालूम नहीं है कि इन नामों के पीछे कारण क्या है, इन पीछे के लॉजिक क्या है। तो इसके लिए मेरे जो बुक लिखने का जो मेन पर्पस ये था कि मैं लोगों के उन 100 सवालों के जवाब दे सकूं कि जिसकी वजह से वो हिंदू हैं, और वो हिंदू हैं तो क्यों हैं, और उसकी एडवांटेज क्या है, उसके पीछे का आनंद क्या है, उसके पीछे के सेलिब्रेशन क्या है, उसको वो समझ पाए। तो जैसे ये आनंद की बात है, उसको लेते हुए एक तो जो विविधता है, जितना आप बता रहे हैं, तो मुझे इसमें कहते हुए कुछ भी संशय नहीं है कि बहुत सारे हिंदू जो कि आपकी उम्र के, मेरी उम्र के, उन्होंने इस तरह से नहीं समझा। यानी एक विविधता है विविधता है हमारे संस्कृति के प्रवाह में। इसको लेकर एक सौंदर्य भी बढ़ता है, पर कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है, विशेष करके जब आप भारत से बाहर हैं राजेंद्र जी। तो आप अपनी पुत्री को भी देखते हैं, वो आने वाली पीढ़ी के साथ में बड़ी सजगता से कार्य करके उनको समझाने की दिशा में कुछ क्रिएटिव एक्टिव रहती हैं,
कि वो भारतीय संस्कृति के बारे में समझे। तो यहाँ पे क्या-क्या चुनौतियाँ आपको लगता है मेन आती हैं? लेट मी काइंड ऑफ ऐड टू दिस, जैसे मैं हरि जी की बात सुनते हुए कह रहा था कि जो वास्टनेस है हमारी संस्कृति की, वो बहुत अच्छी तरह एसिमिलेट करना कई लोगों के लिए संभव नहीं भी होता, और उसकी आवश्यकता जब भारत में रहते हो उतनी लगती भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ हो रहा है, अपने आस-पास हो रहा है। पर जब यहाँ आते हैं तो आप उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भई ये पता लगे। जैसे मैं अब न्यूयॉर्क से आपसे बात कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ दशहरे का मेला भी मनाया जाता है यहाँ लिडो बीच पर 19 अक्टूबर को। तो सब लोग इकट्ठा होंगे, रावण का पुतला जलेगा, ऐसा। तो जो बच्चों को लेकर आते हैं माता-पिता, तो बच्चे देखते हैं, तो वो कथा सुनते हैं कि भई रावण क्या, और अच्छाई की बुराई पर विजय इत्यादि बातें। पर कमिंग बैक टू यू राजेंद्र जी, क्या चुनौती एक एनआरआई पेरेंट के सामने विशेष रूप से आपको लगती है? अशोक जी, ऐसा है कि जहाँ तक चुनौती की बात है, मैं आपकी बात मानता हूँ, चुनौती है उनके आसपास के वातावरण को देखते हुए। लेकिन दूसरी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जितना आसान आज की तारीख में बच्चों को समझाना है उतना कभी नहीं था अमेरिका में। जी, जी, जी। क्योंकि जो वीडियोस अवेलेबल हैं, जो यूट्यूब्स अवेलेबल हैं, चाहे आप हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपकी कोई भी भाषा हो, तेलुगु हो, तमिल हो, उन सब में वो वीडियोस अवेलेबल हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों को जो हम हमारे घर में करते हैं, एक तो हिंदी सिखाना जरूरी है, क्योंकि अगर भाषा नहीं होगी तो संस्कृति नहीं हो सकती। दूसरा, जो भी हम उत्सव मनाते हैं उत्सव मनाएं, और उत्सव के पीछे कारण क्या है वो बताएं, वो जरूरी है। तीसरा, हम उनको जो जैसे रात को सोते समय कहानियां सुनाते हैं, तो हमारे जो शास्त्र है उनकी कहानियां सुनाएं। रामायण की कहानी है, महाभारत की कहानियां हैं, पंचतंत्र की कहानियां हैं। तो जो हमारा एक है कहानियों का के द्वारा जो सिखाने का एक सिस्टम है वो सुनाएं। चौथा, एक मिनिमम पूजा कैसे की जाती है, उनको अपने भगवान के प्रति जो है एक आस्था हो, कि भी चाहे वो गणेश को माने, चाहे माता जी को माने, चाहे शिव जी को माने, तो सवेरे एक बार उनको दिखाए। और पांचवा मैं समझता हूँ गायत्री मंत्र, क्योंकि गायत्री मंत्र ऐसा है जिसका प्रभाव जबरदस्त है, बुद्धि पर प्रभाव है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये लोगों ने अनुभव किया है और कई साइंटिस्ट पे प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं, और ये सम्मत बात है। सबसे बड़ी चीज ये है कि संस्कृति, हमारी संस्कृति को बचाना इसलिए जरूरी है कि अगर हम संस्कृति नहीं बचा पाएंगे तो धर्म नहीं बचा पाएंगे, और अगर हमारा धर्म नहीं बचा तो पृथ्वी नहीं बचेगी। क्योंकि सिर्फ यही धर्म है जो सबको साथ लेकर के चलता है। यही धर्म है जो किसी एक किताब में विश्वास नहीं करता है। यही धर्म है जिसकी किताबों में सवाल पूछे जाते हैं, और बड़े बड़े गूढ़ सवाल पूछे जाते हैं, और गुरु ये नहीं कहता है कि ये तुम क्यों पूछ रहे हो। गुरु ये नहीं कहता है तुमने ये पूछा, ये किया तो तुम नरक चले जाओगे। गुरु ये नहीं कहता है तुमने, इसीलिए हमारे धर्म में हमारे धर्म को छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, और धर्म के में लाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ना हम जनेऊ पहना के किसी को धर्म में ला सकते हैं, और हमारे यहाँ तो जो कहा है कि जो भी जन्म से सभी शूद्र हैं, जब वो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, उसका अपने पढ़ाई करते हैं, अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं, तभी वो अपने अपने कर्म के अनुसार बाकी वर्णों में जाते हैं। तो जो चीजें हमारे यहाँ पर है, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही हरि जी, कि धर्म जो है वो हमको जोड़ता है। तो हम सब एक दूसरे से धर्म से ही जुड़े हुए हैं, और ये सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, सारे लोग। जैसे एक पिता पुत्र से जुड़ा है तो पिता धर्म से जुड़ा है, पुत्र पुत्र धर्म से जुड़ा है, पति पत्नी एक पति धर्म से जुड़ा है, पत्नी धर्म से जुड़ा है। मैं अगर मित्र से जुड़ा हूं तो मित्र धर्म से जुड़ा हूं। इवन मैं अपने शत्रु से भी जुड़ा हूं तो शत्रु धर्म से जुड़ा हूं। हमारे यहाँ पर हर चीज का एक धर्म है। आप शत्रु हो तो शत्रु के साथ क्या धर्म व्यवहार करना चाहिए, इसलिए हमारे धर्म युद्ध होता है, युद्ध नहीं होता। महाभारत में धर्म युद्ध होता है, तो युद्ध में भी एक धर्म है कि आप शत्रु से किस प्रकार व्यवहार करें, कहाँ वार करना, औरतों पर वार नहीं करना, रात्रि के समय वार नहीं करना, जो उसमें भी एक धर्म आया है। तो हम सब जो जुड़े हुए हैं वो धर्म से जुड़े हुए हैं। अगर हम धर्म से नहीं जुड़े तो हम तो अकेले जंगल में रहने वाले लोग हो गए। तो समाज अगर बना है तो हमारे, ये सिर्फ हमारी संस्कृति कहती है कि हम सब आपस में धर्म से जुड़े हुए हैं। दूसरी संस्कृतियां जो है वो एकाकी संस्कृति संप्रदाय है। वो कहेंगे हमारी बात नहीं मानो तो हम आपको काट देंगे। यहाँ तक कहते हैं कि जो आपकी बात नहीं मानते उनको काट दोगे तो आपको जो है स्वर्ग मिलेगा। आप जितने ज्यादा धर्म में लाओगे उतना स्वर्ग मिलेगा। लेकिन हमारी ही जो संस्कृति ऐसी है और उस धर्म ऐसा है, उस धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की और संस्कृति की रक्षा के लिए उत्सव मनाना,
भाषा पे जोर रखना, आपस में व्यवहार पर ध्यान रखना और अपने बच्चों के प्रश्न का उत्तर देना और खुद समझना और पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। बहुत ही सुंदर आपने बताया। और आप दोनों विद्वानों के बीच में मैं जब बैठा हुआ आपकी बातें सुन रहा हूँ, तो मुझे लगता है जो एनआरआईज का डिलेमा जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, वो और ज्यादा उसका कंट्रास्ट हमारे सामने आता है। जैसे आपने कहा कि धर्म जोड़ता है, और राजेंद्र जी जो बता रहे थे कि धर्म को लेकर व्यवहार है, संबंध है, उसकी स्पष्टता है, तो मुझे याद है हम पत्नी को भी कहते हैं धर्म पत्नी है। तो धर्म पत्नी है तो वो अपने कुछ विशेष रूप से जो संस्कृति का आधार है वो तो मातृशक्ति ही है, उसको लेकर हम बात करते हैं। पर यहाँ से मैं डिलेमा की तरफ जाऊं तो जिस परिवेश में बच्चा बाहर आता जाता है, जो कुछ वो देखता सुनता है, जिस तरह की बातें उसको हिंदू धर्म के संबंध को लेकर कक्षा में या किताब के द्वारा पढ़ने सुनने को मिलती है, उसमें एक तो जाति प्रथा को लेकर बहुत एक अदालत या कटघरे में जैसे हिंदू परंपराओं को रखा जाता है, ऐसा। तो वो जब ये सारी चीजें देखता सुनता है, उसके मन में जितने प्रश्न आते हैं, हर एक पेरेंट इतनी अच्छी तरह से उसको हैंडल करने की स्थिति में होता नहीं है। वो उसको मतलब फिर कई बार बच्चे पूछते भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर का जो श्रद्धा का बीज है वो उस तरह से अंकुरित नहीं हो पाता, क्योंकि वो संशय से आसपास का जो एक वातावरण है वो उसको प्रभावित करता है। यहीं से जो पेरेंट्स है वो देखते हैं कि भाई छोटा बच्चा है, तब तक तो वो मंदिर जाने के लिए भी या उनके साथ तैयार होगा, उत्सव मनाने में भी थोड़ा उत्साह लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े होते जाते हैं वो अपनी एक अलग व्यक्तित्व को जिस तरह से पहचानते हैं भारत से बाहर रहते हुए, तो वो संस्कृति के साथ उनका जुड़ाव धीरे धीरे कम होता जाता है। ये चुनौती है, उसमें उसको कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। हरि जी, आप क्या इस बारे में कहेंगे? सर देखो, आपने बहुत सही पॉइंट जोड़ा है। आज की तारीख में जो लोग हिंदू पेरेंट्स के साथ यहाँ अमेरिका में आए, या जो अमेरिका में हिंदू मदर फादर से पैदा हुए, उन लोगों ने जो आसपास का वातावरण देखा, उसमें क्रिश्चियनिटी और अलग अलग धर्मों की बात उनके दिमाग में पहले आई। लेकिन हमने गलती ये कर दी कि हमने कभी उनको वो एक्सपोजर नहीं दिया कि आपका रिलीजन भी उतना ही पावरफुल है जितना वहां आजू बाजू में आपको पावरफुल बनाया जाता है। जैसे हेलोविन है, या आपका न्यू ईयर डे है, या क्रिसमस है, इस तरीके के सेलिब्रेशंस को यहाँ के बच्चे जो पैदा हुए हैं वो देख करके दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग। लेकिन हमने कमी ये कर दी कि हमने हमारे रिलीजन के पीछे के जो लॉजिक है, हमारे रिलीजन के और रिचुअल्स के पीछे जो लॉजिक है, उनको सही तरीके से समझाया नहीं हमें। आप और दूसरा एक प्रॉब्लम ये हुआ कि जो मैंने अपनी बुक का नाम जो क्रिटिकल हिंदू रखा है, उसके पीछे का कारण ये है कि हमारे रिलीजन की सबसे ज्यादा क्रिटिक्स होती है। यहाँ तक कि आप बॉलीवुड की फिल्म में भी देखेंगे तो जो चोटी वाला पंडित होगा वो पंडित बदमाश ही होगा, और दूसरे रिलीजन के लोग जो होंगे उनको अच्छे बताए जाते हैं। तो लोगों ने इस तरीके से देख देख करके अपने धर्म को उन्होंने रक्षा ही नहीं की है, उसको गलत तरीके से बताया गया है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी शादी में जाते हैं, आपने कभी ये देखा कि जो पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं उनका माइक नहीं चलता है, डीजे चलता है, गाने चलते हैं, और ये कहा जाता है कि अब पंडित जी को मैंने 500 रुपया एडवांस में दे दिया, भाई जल्दी इसको काम को पूरा करो। अरे भाई, उस समय तो आपको पंडित जी की जो बातें हैं, उसके उस रिचुअल्स के अंदर जो चीजें आपसे प्रोमिसेस लिए जाते हैं, आपको जो धर्म के बारे में समझाया जाता है, वो चीजें सुनने की हैं, लेकिन वो सुनते नहीं है। वो हम डीजे के पीछे शादियां डिस्को डांस करने लग जाते हैं, पंडित जी अपने कोने में कहीं मंत्र जप कर रहे हैं, आपको ये तो करवा रहे हैं। हरि जी, मैं आपसे इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हाँ। अमेरिका जो है, एनआरआईज के अलग अलग भूमिकाएं होती है। तो मुझे ना पंडित जी के रूप में कई शादियां करवाने का अवसर हुआ है, तो मैं अपने हाँ। अनुभव से बता रहा हूँ। बल्कि जैसे आपने कहा उसके कंट्रास्ट में मुझे ऐसे लगा भारत में वैसी स्थितियां मैंने अधिक देखी कि वो पंडित जी क्या बोले ध्यान दे रहे हैं। यहाँ तो कई बार वो बहुत ध्यान से न केवल सुनते हैं बल्कि बाद में प्रश्न भी करते हैं, और कुछ बुजुर्ग जो होते हैं वो भी कहते हैं अरे हमको तो ये याद ही नहीं था, हमारी संस्कृति में इतनी विशेषता है क्या यस, पति यस। पत्नी के बीच के, और ये जो हाँ। 7 कदम ले रहे हैं उसका महत्व। तो दोनों तरह की बातें हैं, पर वो बात सही है कि जो संस्कार का मूल मर्म जो है उसकी अपेक्षा जो बाकी आडंबर कह दो उसको, या सजावट हो गई, उसकी तरफ अधिक ध्यान रहते हैं। और ये भी पता है कि अधिकतर लोग कहते हैं भैया आधे घंटे के अंदर अंदर पूरी हो जानी चाहिए। हाँ, पूरी हो जानी चाहिए। तो एक बार मैं आपके वापस राजेंद्र जी, ये संदर्भ जो है उसमें
हम दो तरह से देख रहे हैं, बल्कि बहुत सारे इसके आयाम है, लेकिन एक तो यह है जो सामूहिक उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे मैंने दशहरे का उल्लेख किया, या आप देखते होंगे बहुत सारे दिवाली मेला इत्यादि मनाए जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होते भी हैं। जैसे अब तो टाइम स्क्वायर में भी दिवाली मनाई जाती है हमारे यहाँ न्यूयॉर्क में, और ये साउथ सी पोर्ट पर हर साल होता था मेला वगैरह। तो मुझे लगता है, लेकिन वो नाम दिवाली का होता है, नाम होता है कि हम संस्कृति के बारे में प्रचार प्रसार करें, लेकिन सचमुच में होता यह है कि एक बाजार है, वहां पे जाके कुछ लोगों ने खाया पिया या कुछ चीजें खरीद ली इत्यादि। आपके हिसाब से ये जो कलेक्टिव सेलिब्रेशंस है, उसमें क्या एडिशनल एलिमेंट हो जाए जिससे कि जो 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 उसका सार है उसके बारे में भी जागरूकता बढ़ने का वो एक माध्यम और अधिक प्रभावी बन सके? राजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहली बात तो ये कि वो कलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। वो नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कोई भी संस्कृति में, समाज में अगर आपस में शामिल नहीं होंगे तो कुछ होगा ही नहीं। इसलिए वो बाजार भी होना जरूरी है, चीजें मिलना भी जरूरी है। अब वहां एक ही दो चीजों में फर्क आता है। अगर हम उसमें, जैसे अगर नवरात्रि हो रही है तो दुर्गा पे एक नाट्य, नृत्य, कल्चरल प्रोग्राम जो नवरात्रि से रिलेटेड हो, दिवाली पे हो रहा है, दशहरा पे हो रहा है तो रामलीला से रिलेटेड अगर को, अब देखो गांवों में भी पुराने में वही बाजार लगते थे, हाट लगते थे, लेकिन रामलीला होती थी। वही बाजार हाट लगते थे, लेकिन नवरात्रि की डांस प्रोग्राम होते थे। तो जो डांस प्रोग्राम्स है हमारे, और हमारे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो डांस कर सकते हैं, लड़कियां लड़के, तो जो डांस प्रोग्राम है जो इस कहानियों को अपने तरीके से बताते हैं, नाटक हो गए, नृत्य हो गए, ये सब भी साथ में उन्हें अगर जोड़ा जाए तो हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा उसमें। और उसके साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है जो उसके में जुड़े कि हम जो लड़के हैं, लड़कियां, बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें हम कंपटीशन रखा, डिबेट कंपटीशन रखा, एलोकेशन कंपटीशन रखा, कि कोई एक सब्जेक्ट रखा, उस पर वो भी बोले, उनके बारे में आते, भाषण प्रतियोगिता कहते हैं, लेक्चर्स के रख सकते हैं, 5-5 मिनट उनको दे सकते हैं, या कविता पाठ के हिसाब से रख सकते हैं, या श्लोक पाठ के हिसाब से रख सकते हैं, गीता का कोई पाठ करे तो उसके हम प्राइजेस रखें, और वो जो बच्चे हैं वो वहां पार्टिसिपेट करें, उनको प्राइज दिए जाए। तो जब किसी को उत्साह दिया जाए नई जनरेशन को, तो और दूसरा जब डिलीमा आप जो कह रहे थे, मेरे हिसाब से डिलीमा पेरेंट्स में कम है, बच्चों में ज्यादा है। क्योंकि पेरेंट्स जो हैं, खास करके जो पहली बार यहाँ आए हैं, वो यहाँ पैसा कमाने के लिए आए, बाकी संस्कृति तो वहां थी, तो उनको तो डिलीमा है ही नहीं। उनको पैसा कमाना है, घर लेना है, घड़ी लेनी है, उनको कोई डिलीमा नहीं है। डिलीमा उनके बच्चों को है कि मैं अमेरिकन हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं क्रिश्चियन हूं या हिंदू हूं। डिलीमा पेरेंट्स को नहीं है, डिलीमा बच्चों को है। और वो डिलीमा दूर करने के लिए समाज को कुछ करना होगा। और बिल्कुल, और ये जरूरी नहीं है कि माता पिता के पास में सब प्रश्नों के उत्तर हों, ऐसा होता भी नहीं है। क्रिश्चियंस के पास में भी उत्तर नहीं होते हैं, पादरी के वहां चर्च में आता है, पादरी कहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे मंदिरों में जो पुजारी हैं वो सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए नहीं आए। जो पुजारी हो, पंडित हो, वास्तव में पंडित हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो, वहां एक आधा कोई सन्यासी हो, और वहां कुछ ऐसे लेक्चर्स, कॉम्पिटिशन्स सब चलते रहे, चाहे डिबेट के, चाहे कविता के, चाहे शास्त्र अध्ययन के, पठन के, पाठन के चलते रहे, और हमारी जो नई जनरेशन को मौका मिले वो जाके प्रश्न पूछ सके, और वहां ऐसे लोग हों जो उन प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो हमारे जो संस्कृति के जो मेन जगह हैं, सेंटर्स हैं, जो मंदिर है, उन मंदिरों की व्यवस्था अगर सुचारू रूप से हो, जिसमें कोई अच्छे विद्वान, जैसे रामकृष्ण मिशन के कितने सारे अच्छे अच्छे संत महात्मा हैं, वो उन मंदिर, हर मंदिर में कोई न कोई संत महात्मा जो विद्वान है उनसे रिलेटेड हो, और वो हर किसी फंक्शन में आकर के अपना सत्संग, ऐसा मेरा विचार है। ये बहुत सुंदर आपके सुझाव हैं, और मुझे लगता है कोई आपकी बात सुनते हुए इस दिशा में सोचेंगे और मंदिरों के साथ इस तरह की व्यवस्था जो थोड़ी बहुत है उसको और अधिक बढ़ाने की दिशा में कार्य करेंगे, क्योंकि चिंतन तो सबका इस तरह का कहीं ना कहीं मिलता जुलता होता ही है। समय की सीमा को देखते हुए हरि जी, जब हम इन्होंने कहा कि वो बच्चों का डिलेमा है, मैं तो एनआरआई के डिलेमा की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैं बच्चे भी ले रहा हूँ और पेरेंट्स को भी ले रहा हूँ, तो सबके डिलेमा की बात है। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चों के मन में एक प्रकार का अरुचि तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन
वो एक आकर्षण नहीं बन पाता है। उसके बहुत सारे कारणों में एक कारण मैं फिलहाल ये ले रहा हूँ कि जो ये हमारे स्मार्टफोन है और जो सोशल मीडिया है, ये पेरेंट्स को भी खींच के ले जाता है, बच्चों को भी खींच के ले जाता है। तो कुछ इंटरेस्टिंग तरह से अगर आप उनके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे कल्चर की बातों को तो बहुत मुश्किल होगा। कुछ सुझाव राजेंद्र जी ने दिए, बट पेरेंट्स घर पे क्या करें? जैसे मैं जानता हूँ कुछ रात को वो कोशिश करते हैं, जैसे आप बात कर रहे थे कि कोई कहानियां सुनाए वगैरह, पर हर एक पेरेंट इतने अच्छे कम्युनिकेटर होते नहीं हैं। फिर भी क्या सुझाव आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे? जी हरी जी। मैं सर एक चीज हमेशा कहता आया हूं और आपकी इस माध्यम से एक बार और कहना चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी ऐसा साहित्य या कोई भी ऐसा लेक्चर या कोई भी ऐसी बुक नहीं है कि जिसने 45 मिनट के अंदर 45 मिनट्स के अंदर एक हारे हुए आदमी को युद्ध जिताने के लिए प्रॉम्प्ट किया, मोटिवेट किया और उसको सक्सेस दिलाई। दैट इज श्रीमद् भागवत गीता। हम कुछ भी करें लेकिन एक बुक हमारे ड्राइंग रूम के अंदर रहनी चाहिए और वो है श्रीमद् भागवत गीता। हम एक चीज बच्चों को ये बताएं कि इस भागवत गीता के ग्रंथ को एक बार नमस्कार करके आप घर के बाहर जाइए, इतना आप करिए। एक एक्साइटमेंट उसके अंदर आएगा कि इस बुक में क्या लिखा। आज की तारीख में इंग्लिश में भी श्रीमद् भागवत अवेलेबल है, गीता अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, किसी भी दुनिया के हर भाषा के अंदर, उर्दू में भी ये अवेलेबल है। आप जिस किसी भाषा को अपने घर में अडॉप्ट की हुई है उस भाषा के अंदर गीता को एक बार अपने रूम में रखिए और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कभी कभी अपने बच्चों को बताते रहिए। एक चीज ऐसी होनी चाहिए कि उनके अंदर ये अब स्वतः इच्छा जागे, टेम्पटेशन हो कि इस बुक में ऐसा क्या लिखा है, उसके बारे में बताइए कि दुनिया के बड़े बड़े साहित्य हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़े बड़े मोटिवेशन की बुक है, लेकिन कोई भी ऐसा क्लासिक एग्जाम्पल नहीं है कि जिसने सिर्फ 45 मिनट के अंदर हारे हुए आदमी को जिताया हो। तो अगर इस बुक के बारे में तुम पढ़ना चाहते हो तो इसको हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, गुजराती में पढ़ो, तमिल में पढ़ो, किसी में भी पढ़ो, लेकिन एक बार पढ़ो। अगर आप इतना मोटिवेट अपने बच्चों को कर सकते हैं और एक बार अगर किसी यंग बच्चे ने गीता को एक बार पढ़ लिया, वो आदमी कभी गीता भूल नहीं सकता है साहब, कभी भूल नहीं सकता है। तो आपकी एक बात तो मुझे चीज हमें बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही और मुझे लगता है कि सही बिंदु पर हमारा ये जो विमर्श है उसका उपसंहार हो रहा है। और श्रीमद् भगवद गीता एक प्रकार से केंद्र और एक कुंजी है मानव मन को समझने की भी, और कई शताब्दियों से जो साइकोलॉजिस्ट बातें करते हैं उसका भी एक निचोड़ और श्रद्धा का भी वो सब आता है। और आपके एक ही बात मैं डायरेक्ट कहना चाहता हूँ कि उन बच्चों को ये बताइए कि इसमें 700 श्लोक हैं जिसके अंदर 550 श्लोक ऐसे हैं जिसमें कृष्ण ने सवालों के जवाब दिए हैं। ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जिसमें आपसे सवाल पूछने का अधिकार हो। यही रिलीजन ऐसा है जिसमें आपको सवाल पूछने का अधिकार है और स्वयं भगवान उसका जवाब दे रहे हैं। अगर ये बात इस पंच को अगर आप कहीं अपने बच्चों को कहें तब अपने को उनको मालूम पड़ेगा भी ऐसी क्या सवालों के जवाब है। तो इस तरीके से अगर हम नए नए तरीके से मोटिवेट करें, बच्चे एक बार पढ़ लें तो डेफिनेटली मैं मानता हूं कि इसके ऊपर उनकी श्रद्धा जमेगी, उनके विचार उसके साथ संलग्न होंगे एंड दे विल गेट अटैच्ड टू दैट काइंड ऑफ सर्विस। और समय ये कह रहा है कि मैं हरि जी को नमन करूं और राजेंद्र जी को नमन करूं। और बहुत धन्यवाद अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं हैप्पी दीपावली इन एडवांस। हैप्पी दीपावली इन एडवांस। बहुत ही बढ़िया। तो उत्सव में जीवन हमारा बने, श्रद्धा के साथ हम आगे बढ़े। हरि जी का, राजेंद्र जी का धन्यवाद करने के साथ साथ आप सभी को धन्यवाद और बहुत सारी बधाइयां, अनुमति दें। थैंक यू सर, थैंक यू।